we too will present and explain you the cash management flow. Am I audible clearly? Yes, Dhruv, you are audible. Yes, yes, yes. Okay, okay. So let me just share my screen. Is my screen visible? Okay. So basically, what is cash management? So what happens is in every store there is a problem of maintaining and managing the cash, that what cash is coming in my store and what cash is going out of the store. So to manage and track the whole cash flow coming in and going out of the store, this cash management feature is used. And the basic second problem that chemists generally face is they have multiple staffs working in their store. So they can't trust every staff. So is English comfortable to everyone, or may I just continue with Hindi too? Okay. So Dhruv, I think you should continue with Hindi. okay. Okay. So the second problem is they don't know that which staff is currently working and how much cash is collected during their staff shift. So what cash management does is it will bifurcate all the cash collected by the staff in their staff shift. Let's say staff 1, Dhruvi, is coming between 10 to 5 p.m. So it will show that between 10 to 5 p.m. Dhruvi has collected this much of amount of cash. After that, my shift is ended, and now from 5 to 8, Monica's shift has started. So it will again show that from 5 to 7, Monica has collected this much amount of cash. And after the end of the day, there will be an amount that will be known as system cash. So, for example, Dhruvi has collected 5,000 rupees and Monica has collected 2,000 rupees. So net amount in my cash counter should be 7,000. It will be shown by the system, and that way you can check that is it correct with your system and your cash counter or not. Okay. So now let's see that how we can activate this cash management in our system. So there are mainly very three basic steps. I'll show you. Okay. So our first step includes for turning the setting on for cash management. So we have all the settings here. There is one more setting named as cash management. Here we have activate cash management. So for starting all this process, the basic first step you need to do is to activate the cash management. Once you activate these settings, it will be enrolled in your system that from now on cash will be managed. The second most thing you have to do is you have multiple staffs. Some are of your salesperson, some are delivery boys, some who just take purchase. So instead of adding every staff in your cash management, you have to go to your staff and sessions. And here you can see all of your staffs. Now here, let's say Jignesh Parmar is my salesperson. So in that role, I have to assign one permission named. Sorry. So there is one permission named as cash management. If I'll add this permission in the role of salesperson, so whoever staff has this role, salesperson, anyone, Dhruvi, Monica or Jignesh Bhai, will be enrolled to do whole this cash management process. If I will turn this permission off, then it will not work for that staff. So this is the second step for turning the cash management of whoever staff you want to turn it on. From all of these your staffs, you can turn it for anyone. And all these things, the last step is the owner can track all these activities in our report known as cash management report. So here in the report section, you have this report, cash management, and you can check daily updates here as per the staff you have added.
that which of the staff has collected which amount and it may between which period of time. It will show you all the details. So these are the basic activation steps. Now let me continue to show you the whole cash management flow, that how it will work. I will give you a small demo, and my colleague Monica will show you one small demo. So let's just her present her screen and she will continue from now on. Monica, over to you. Okay. Am I audible? Hello. Hello. Hello, am I Yeah, audible? yeah. ओके ओके, तो आगे की प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं. तो जैसे कि ध्रुवी ने बताया कि जिग्नेश परमार स्टाफ को जो हमने सेल्स पर्सन का रोल असाइन किया है, मैंने उसे स्टाफ से लॉगिन किया है. अब ये स्टाफ डेली जितने भी ट्रांजैक्शन बनाएगा वो हमारे कैश मैनेजमेंट के पेज में दिखेंगे. ओके, तो जैसे कि अभी मैं सेल्स में जाकर एक बिल बना रही हूँ. ओके, ₹83 का बिल है. ठीक है, तो जैसे कि मेरी शिफ्ट 24/7 की है. ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 शिफ्ट में काम कर रही हूँ, सुबह से दोपहर तक, उसके बाद शाम से रात तक. तो अभी जैसे कि मैंने 2-3 बिल बनाए, इसमें कुछ क्रेडिट है, कुछ कैश है, यूपीआई वगैरह सभी मोड में हम बना सकते हैं. जैसे कि अभी ₹83 जो कलेक्ट हुए कैश एज अ कैश है अभी के जो मेरे हैं. तो जैसे ही मैं लॉग आउट करने जाऊंगी, उस टाइम पे हमारा जो ये पॉपअप आता है, आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट, उस टाइम पे एक और हमें एक कंफर्मेशन बॉक्स आएगा कि मेरा शिफ्ट का टाइम अभी तक खत्म नहीं हुआ है. मतलब कि मेरी शिफ्ट अभी जैसे कि 6 बजे तक स्टार्ट है, लेकिन बीच में मैं लॉग आउट कर रही हूँ. तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं नो करूँ, मतलब मैं सिर्फ ब्रेक ले रही हूँ 4-5 मिनट के लिए, मैं वापस आने वाली हूँ, तो उस केस में मैं नो करूँगी. लेकिन अगर ऐसा है कि मैं अभी आज किसी काम से मैं जल्दी जा रही हूँ या किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर मैं वापस 2-3 घंटे के बाद आने वाली हूँ, लेकिन मैं कैश अभी जो है मतलब ओनर को बताने के लिए कि इतना मेरे टाइम पीरियड में मैंने इतना कैश कलेक्ट किया था, तो वो सब कुछ मैं हैंड ओवर करके जा रही हूँ. तो उसके लिए मुझे यस सिलेक्ट करना है. जैसे कि अभी मैं सारा कैश देके जाऊंगी, तो मैं यस का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी कि यस, मेरा सेशन जो है वो बंद कर दो और मैं लॉग आउट हो जाऊंगी डायरेक्ट. तो जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूंगी, तो ये मुझे पूछेगा कि आज के मतलब मेरे टाइम पीरियड में मैंने कितना कैश कलेक्ट किया है, वो मुझे डिपॉजिट करना है. जैसे कि मैंने 2-3 बिल बनाए हैं, और अभी के लिए मैंने जैसे कि आपके सामने 83 का बिल बनाया है, तो मैंने कैश कलेक्ट कर दिया, जैसे कि 80 डाल दिया है. ठीक है, मैंने ये मिसमैच अमाउंट डाली है आगे बताने के लिए कि ये क्या वर्क करती है. ओके, तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करके ओके करूंगी, तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा. अभी जैसे कि ओनर है, तो वो अगर रिपोर्ट देखने बैठा है आज कि आज के दिन में कितना कलेक्शन हुआ, वो सब कुछ, तो मैं आज के दिन से फिल्टर लगा के देखूंगी. तो स्टाफ जिग्नेश परमार ने कितना कैश कलेक्ट किया है, तो उसमें दिखा रहा है कि उनकी शिफ्ट के दौरान उन्होंने ₹83 जो थे वो कलेक्ट किए थे, लेकिन ड्रॉवर में उन्होंने सिर्फ ₹80 ही डाले हैं, मतलब कि उन्होंने ₹3 कम डाले हैं. और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा कि उन्होंने स्टार्ट कब किया था और एंड कब किया था. जैसे कि उन्होंने आज के दिन में 3:50 को लॉगिन किया था, उसके बाद 4:13 पे उन्होंने अपनी शिफ्ट बंद करके कैश हैंड ओवर करके उन्होंने लॉग आउट कर दिया था. अब ऐसा हो सकता है कि किसी भी रीजन से वो जो डिफरेंस आ रहा है, वो ओनर पूछ सकता है स्टाफ से कि ये किस रीजन से आ सकता है या कुछ भी. तो वो हो सकता है कि स्टाफ ने जानबूझकर कम डाले हो किसी रीजन के लिए या किसी भी लिए, तो उसको बाद में अगर चेंज भी करना है, तो जिसके पास इस रिपोर्ट का एक्सेस होगा वो उस अमाउंट को चेंज कर सकता है यहाँ से. जैसे कि मुझे 83 पूरे डालने थे, तो अब अगर मैं इसको चेंज करूंगी,
तो ये अकॉर्डिंगली चेंज भी हो जाएगा और इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। और अगर हमें पूरा ही स्नैपशॉट देखना है कि एक्चुअली उस टाइम पे कितने ट्रांजेक्शन हुए थे और क्या हुआ था, तो यहाँ पे बाजू में एक और आइकन है, इसके ऊपर से हमें पूरी डिटेल दिखेगी। जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे स्टाफ का नेम, उसका मेरा पूरा टाइमिंग 24/7 है, मैंने स्टार्ट कब किया था, एंड कब किया है, और मेरे इस टाइम पीरियड के बीच में मैंने कितने ट्रांजेक्शन किए थे, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा एक स्मॉल डेमो कि ये कैसे वर्क करता है कैश मैनेजमेंट। तो अभी अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मैम क्या मैं पूछ सकती हूँ? यस यस बिल्कुल। ये सिर्फ कैश के लिए है, इसमें यूपीआई और दूसरा कोई भी मैनेजमेंट का नहीं आता है ना? तो जो कैश सेल हुआ है उतना ही दिखाता है। हाँ, आप क्योंकि ये पूरा कैश मैनेजमेंट है ना, आपका काउंटर का कैश और आपके सिस्टम का कैश मैनेज करने के लिए है। ओके, ये नॉन एडिटेबल टू द वर्कर है। मीन्स कोई एडिट नहीं कर सकता, ओनली ओनर एक्सेस या किसको एक्सेस है हाँ वही सिर्फ वो एडिट कर सकता है, करेक्ट हाँ कर सकता है। हाँ, या तो ओनर या तो फिर जिसको आपने रिपोर्ट का एक्सेस दिया है वो कर करेक्ट, सकता है। हाँ, जो भी एक्सेसिबिलिटी दिया है सिर्फ उसको दिया है, वो ही एडिट कर सकता है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। ओके। यस सर। हाँ मैडम, यस। हाँ मेरा सवाल ये है, वैसे तो हामिद भाई ज्वाइन किए हुए उनको पता है, फिर भी मैं एक बार पूछ लेता हूँ। अभी जैसे सपोज है ना 10,000 रुपये का सेल हुई और उसमें 1,000 रुपये का क्रेडिट वाउचर एडजस्ट हुए, कस्टमर के सपोज 1,000 रुपये के क्रेडिट वाउचर एडजस्ट हुए, 2 कस्टमर के, 3 कस्टमर के, एक किसी के भी। उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे 10,000 की सेल पूरी दिखाता है वो, और 10,000 का कैश मतलब मांगता है वो, तो जबकि उसमें 9,000 होना चाहिए। ऐसा उसमें कुछ अपडेट आया है क्या आमिर भाई? देख, सुन रहे मेरी बात? अभी कुछ अपडेट किया है क्या, या वही फ्लो है अभी? बेसिकली हाँ, मोनिका ये पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वाउचर एडजस्टमेंट होगा कैश मैनेजमेंट में, तो अगर वो कैश वाउचर एडजस्टमेंट का तो हम अमाउंट दिखाता ही नहीं है ना, तो जो एक्चुअल जो पेमेंट मोड कैश में दिया होगा गोयल सर वही आएगा जब वो शिफ्ट क्लोज करेगा तो। नहीं, हमारी समस्या ये थी ना कि वहाँ पे वो सेल दिखा रहा, वहाँ पे कैश दिखाता था 10,000 की सेल हुई, 10,000 दिखाता था, और 1,000 का एडजस्टमेंट हुआ है, तो वो 1,000 को कम करके नहीं दिखाता था। तो अभी आपने कोई अपडेट किया है कि नहीं किया है? तब वो 9,000 के, अगर वो 9,000 जमा करा रहा है ना कैशियर, तो वो डिफरेंस दिखाता था उसमें 1,000 का। ओके ठीक है, एक बार वो आई गेस सर उसमें जो है कि फॉर एग्जांपल आपका रिटर्न जो है वो एडजस्ट हुआ है, तो वो जो 1,000 जो होगा ना वो आपको उस सेल्स रिटर्न के सेक्शन में दिखाएगा। तो वो बोलेगा कि 10,000 का सेल्स है और 1,000 का रिटर्न है, तो नेट नेट आपको लेने का 9,000 ही है। तो जो नेट अमाउंट का लास्ट कॉलम है ना, वहाँ पे वो 9,000 ही दिखाएगा। माना कि वो सेल्स में 10,000 दिखा रहा है, लेकिन वो रिटर्न 1,000 दिखाएगा, तो आपको नेट अमाउंट जो होगा वो वापस से 9,000 ही हो जाएगा आपके लिए। नहीं, अपन ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे नेट अमाउंट ही दिखाए, वहाँ पे कैश सेल इतनी नहीं दिखाएं, क्योंकि एडजस्ट हो ही चुका वो। उसमें एडजस्ट और हो ज़्यादा ठीक, चुका है। और ज़्यादा अच्छा और लगेगा, क्योंकि इसमें फिर है ना ओनर को सब ये दिमाग लगाना पड़ेगा, किस किस एडजस्ट हुआ है, क्या है, वो देखना पड़ेगा सारा। ओके सर, विल लुक इनटू दैट। हम देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेज होंगी ना, और मल्टीपल कैशियर होंगे हम्म अलग अलग ब्रांच के, तो वो पूरे मतलब ये सिस्टम में थोड़ा दिक्कत ये आएगी, बार बार उसको देखना पड़ेगा कि भाई इतना कैश जो कम मिला है वो क्यों कम मिला है, और किस किस के बिल के रिगार्डिंग मतलब एडजस्टमेंट हुए हैं। राइट तो सर, प्लस राइट। माइनस ज्यादा करना पड़ेगा उसको। तो मैं ओके ये चीज फेस कर रहा हूँ, ओके। है ना। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बटन आपने नया लगाया है, ये शायद अभी लगाया, पहले नहीं था इसमें, ये ओनर अकाउंट में जो लास्ट वाला जो बटन था ना, स्नैपशॉट वाला। स्नैपशॉट वाला, तो हाँ पहले सर, क्या, वो पहले उसी में जाना पड़ता था, कैश मैनेजमेंट में अलग से जाना पड़ता था, अब वो वहीं से जा सकता है ऐसा?
हाँ, अभी अगर आप वहां पे भी क्लिक करोगे तो वो आपको रिडायरेक्ट करके वहां पे ही दिखा देगा कि ये दोनों टाइम पीरियड के बीच में कितने ट्रांजेक्शन हुए। तो अभी आपको कैश मैनेजमेंट पेज पे जाके या पेमेंट डेट कुछ सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा मैन्युअली, आप वहां पे ही सिलेक्ट करके क्लिक करोगे तो वो आपको रिडायरेक्ट करके सब कुछ प्रीफिल करके डेटा शो कर देगा। हाँ, तो अभी की तो कंडीशन यही है कि ओनर को फिर वो मतलब वो जस्टिफाइड लगेगा तो फिर उसको प्रॉपर कर देगा। हम्म। मान लो सेल रिटर्न हुई है और उसको जस्टिफाई लगेगा तो फिर वो उसको वो वेरीफाई करके कर देगा, अदरवाइज ये पहले से हो जाता और भी अच्छा है। ओके। और हमारे केस में क्या है कि हम मतलब सेल्समैन अलग होता है, हमारा रिटर्न वाला कैशियर अलग केस। होता है। हाँ, मतलब वही वाउचर एडजस्टमेंट, हम्म। पहले का क्रेडिट नोट को एडजस्टमेंट। और हमारे केस में क्या है कि हम यस, सेल्समैन राइट। अलग अलग होता है हमारा और कैशियर अलग होता है। तो वो तो बात एक ही है, मतलब हम ड्यू में बिल बनाते हैं और कैशियर उसको फिर है ना कैश में कन्वर्ट करता है, पेमेंट मोड में कन्वर्ट करता है। तो कैशियर बिल बनाए या मतलब सेल्समैन बनाए, बात तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। ओके। एक और बात भी मैं पूछना चाहती थी, जब जैसे सर ने मेंशन किया, तो वो जो एम्प्लॉय है वो अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट में कितना डालेगा फिर? या तो 10,000 डालेगा सेल, या 9,000 डालेगा कैश इन हैंड डिपॉजिट? उसको जो भी उसके कैश जितना उसके गले में उसने काउंट किया होगा वही कैश वहां पे वो डालेगा। नहीं, जितना भी जितना अमाउंट। उसमें हाँ, जितना रिसीव हुआ है वो अमाउंट। ओके, कैश इन हैंड उतना ही एंटर करना है ना उधर? तो यस। उधर वो तो कोई जस्टिफिकेशन देगा नहीं, फिर डायरेक्टली जब पूछेगी तभी बताएगा फिर। ओके। हाँ, तो आपको वहां पे डिफरेंस आ जाएगा ना मैम कि हाँ। ये सिस्टम कैश है और उसने इतना लेस डाला है, तो आप वहां राइट, से आप राइट। आइडेंटिफाई कर पाओगे। डन, डन, या ओके। यस सर। मैडम मेरा ऐसा पूछना था, इसमें सिस्टम में अपने कहीं पे भी केस मैनेजमेंट करने का पूरा ओवरऑल केस बुक है जहाँ पे अपन पूरा मैनेज कर सके? जैसे मैंने आज के एंट्री में अगर एक एक्सपेंस किया 100 रुपया, तो वो केस में से माइनस हो जाता है। और अगर मैंने 100 रुपया सेल में से बिल बनाया 100 रुपये का, तो वो सेल में चला जाता है, तो वहाँ पे केस प्लस हो जाता है। फिर अगर किसी परचेज का बिल मैंने पेमेंट में डाल दिया कैश, तो फिर वहां से माइनस होके ओवरऑल लास्ट में टोटल आना चाहिए कि आपके गले में इतना कैश होना चाहिए। ये कहीं पे वो भी सर बढ़िया एक्चुअली, से केस बुक। हाँ, वो आप जो बोल रहे हो ना कैश बुक, वो टोटल कैश बुक एज इट इज नहीं है कि वो एंट्री दिखाता है, बट फॉर एग्जांपल आप उसको परचेज किया आपने, या फिर आपने 100 रुपए का कोई एक्सपेंस किया, या फिर आपने उसका परचेज रिटर्न का किया, या फिर सेल्स रिटर्न दिया, तो जो भी कैश पेमेंट मोड है अपना जो कैश मैनेजमेंट का स्क्रीन है, वहां पे आपको टोटल दिखेगा, नेट टोटल कि अभी कितना आपका कैश है। और जब वो ड्रॉवर में सबमिट करेगा आपका कैशियर, तब आपको पता चलेगा कि मेरा वो टाइम पे कितना मेरे पास कैश था वो ड्रॉवर में, आपको वहां पे पता चल जाएगा। या फिर आप सबमिट नहीं कर रहा है कैश, तो भी अपना वहां पे नेट कॉलम का ऑप्शन है, वहां से आपको दिखेगा कि एज ऑफ नाउ अभी कितना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो वहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा। सर अगर कैशियर वाला और ये केस मैनेजमेंट का मतलब ड्रॉर में डिपॉजिट करना और कैशियर ने कितना पेमेंट लिया, ये सर अगर मैं फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मेरे पास काउंटर के अंदर कितना कैश होना चाहिए आज की सेल और सब एक्सपेंसेस माइनस प्लस करने के बाद? यस, तो भी अगर आप कैश मैनेजमेंट यूज नहीं कर रहे हो लाइक शिफ्ट क्लोज वाला, तो भी हाँ, शिफ्ट आपको क्लोज वहां वाला पे मैं नहीं पता कर रहा चलता है। हाँ, तो आपको वहां पे नेट कॉलम का है, तो आपके गले में कितना कैश है वो सिस्टम तो नहीं बता सकता, जो भी आपने एंट्रीज किया होगा सिस्टम में कि सेल हूँ। इतना किया है, परचेज इतना किया है कैश में, उस हिसाब से दिखाई देगा कि आपका कितना कैश होना चाहिए। बट वो अगर आप शिफ्ट क्लोज नहीं कर रहे हो तो सिस्टम को भी पता नहीं चलेगा कि आपका एक्चुअली वो टाइम पे रोअर कैश आपने कितना सबमिट किया था। तो सर उसमें एक्सपेंसेस का कहीं पे भी कॉलम दिख नहीं रहा है जो है सर, उसमें कंसिडर है कर रहा है? है स्क्रीन पे तो सर, नहीं आ रहा एक्सपेंस का भी है। कैश? आपको सर थोड़ा वो स्लाइड डाउन करना पड़ेगा, तो वहां से आपको दिख जाएगा।
नहीं सर, नहीं आ रहा है, स्क्रॉल करने के बाद में भी कहीं पे भी नहीं आ रहा है। मैं एक बार दिखा रहा हूँ सर, जस्ट मैं अपना शेयर कर रहा हूँ सर। जी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी। Yes. तो ये अपना यहाँ पे कैश मैनेजमेंट है। हम्म। तो यहाँ पे सर आप जो भी एक्सपेंस ऐड कर रहे हो वो यहाँ पे आपको आउट में दिखेगा, और अगर आप इनकम ऐड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ से आप स्क्रॉल करोगे, ये रहा एक्सपेंस का कॉलम। अभी आप जो भी आपका एक्सपेंस आपने कैश में रिकॉर्ड किया होगा, तो वो दिन का यहाँ पे आपको नेट टोटल में आ जाएगा कि आज मेरा कैश इतना हुआ, 287 का हुआ। अगर आपने कोई रिटर्न बनाया होगा तो यहाँ से माइनस में होगा, अगर कैश में परचेज लिया है तो यहाँ पे आएगा, एक्सपेंस ऐड किया तो यहाँ पे हो जाएगा, और नेट टोटल यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी सर जैसे मैंने आज टोटल कैश मेरे पास सेल का आया 10,000, 5,000 मैंने अगर बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? बैंक का डिपॉजिट तो सर वो आपको शिफ्ट क्लोजिंग वाला यूज करना पड़ेगा तो ही होगा सर वहां पे, वो केस में। क्योंकि तो हमें पता चलेगा ना कि आपका वो शिफ्ट में आपके पास 5,000 का सेल आया था, आपके पास इन काउंटर 5,000 थे, तो आप शिफ्ट वो फिर आप बाद में बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो वो चीज। उस पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये शिफ्ट 1 का आपका 5,000 का कैश है, तो आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो नहीं नहीं सर, एक एक और ऑप्शन देखो। अगर इसमें ये आप केस मैनेजमेंट वाला बता रहे हो, उसमें एक बैंक बुक है, वहां पे जाके अगर मैं एंट्री डाल बैंक में मैंने 5,000 डिपॉजिट किया तो वो केस इस केस में से माइनस होगा, केस डिपॉजिट में से? नहीं सर, उसमें से माइनस नहीं होगा। तो सर जैसे मैंने आज के गले में से 5,000 मैंने बैंक में भरवा दिए, मैंने एंट्री भी कर दी, बैंक में जमा भी कर दिया, तो अगर वो बैंक में जमा हो रहा है केस मेरा, तो फिर केस में से तो माइनस होना चाहिए, तभी वो टैली के हिसाब से चलेगा। बैंक हाँ, बुक और बट केस बुक मैं दोनों आपको तभी क्या टैली सजेस्ट होगी। करूँ, I आप understood, sir. समझे मेरे But कहने का मीनिंग what जैसे? I suggest is, जी। what I suggest is, sir, कि आप एक बार आप जो यूज करो उससे लाइक वो है, बट आप अगर कैश मैनेजमेंट यूज करोगे ना तो कोई एक्यूरेट पता चलेगा। अभी वहां पे कहीं पे कोई चोरी हो गई कैश की, या कोई मिसमैच आ गया, तो वो आपको पकड़ में नहीं आएगा। इससे अच्छा आप शिफ्ट क्लोजिंग वाला यूज करोगे तो मोर एक्यूरेट होगा, और वहां पे हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर आपने वो शिफ्ट का कैश आपने अगर बैंक में डिपॉजिट किया है तो वो हम आपको वहां पे आइडेंटिफाई करके दे देंगे। मैं वो मेरे केसेस में। कहने का मीनिंग क्या सर, इसमें पर्टिकुलर शिफ्ट वाइज कोई सिस्टम ही नहीं, एक बैंक बुक और एक केस बुक दोनों साथ में चलनी चाहिए, जिसमें अगर केस हमने माइनस किया और वहां पे पर्पस डाल दिया कि भाई हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक वाली बुक में ऑटोमेटिक प्लस हो जाना चाहिए, वहां पे एंट्री आ जानी चाहिए कि आपके हाथ में केस था और आपने बैंक में डिपॉजिट किया। फिर मेरे पास में जैसे मैंने आज पूरे के पूरे बिल कैश में बनाए, जबकि उनमें से 15,000 मेरे पास पेटीएम का आया, तो अभी हर बिल हम पेटीएम में यूपीआई में नहीं डालते, तो लास्ट में डे एंड में क्या करते हैं कि भाई कल के हिसाब में से 15,000 जो पेटीएम आए उसको मैं एंट्री एक डाल देता हूँ कि हमने बैंक में जमा कर दिया पेटीएम के थ्रू, तो वो बैंक बुक में जाके प्लस हो जाएगा और बट कैश बुक सर में से वो माइनस हो जाएगा। एक्यूरेट मेथड नहीं है सर यूज करने का। आई थिंक इसका होगा तो हम डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे को भी क्वेश्चंस हैं। तो उसको एड्रेस कर ले। अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो यू कैन जस्ट रीच आउट एट आवर सपोर्ट, तो वो आपको गाइड कर देंगे सर। ठीक है यस सर। सर। यस हेमंत सर, आपने हैंड रेस किया हुआ है। मुझे वो एक फाइनल सजेशन था, वो जो कैश मैनेजमेंट वाला विंडो है अपना, उसमें कस्टम डेट में दो डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे पर्टिकुलर डेट टू डेट, अभी एक ही डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। बट सर वो कौन सा रीजन था कि आपको बैक डेट का देखना पड़ता था कि बैक आपको डेट में कस्टम नहीं, रेट? मुझे पूरे महीने का देखना है, अगर पूरे महीने का देखना है, कितना सेल है, कितना परचेज है, कितना एक्सपेंस है, सब कुछ देखना है एक ही जगह पे, तो वो मैं कैसे देखूंगा? ओके, आपको सिर्फ ओवरव्यू देखना है कि वो फिर सर फॉर एग्जांपल आज का कैश कितना है वो आपको देखना है, तो सर हमने इन्फिनिटी में रिपोर्ट्स में दे दिया है कि आप पूरा आपको बिजनेस ओवरव्यू देखना है कि पेमेंट मोड वाइज मेरा सेल्स कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, वो आप रिपोर्ट में क्रिएट कर सकते हो। ऐसा स्पेसिफिक केस है कि जिसके थ्रू आप वहां पे यूज करते हो देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वहां पे तो हम क्या दिखाते हैं कि आपका 1 लाख का 10 लाख का सेल हुआ है, उसमें से आपका 8 लाख का खर्चा हुआ है, 2 लाख आपका बचा है, जो आप कस्टम रेंज से देखते थे। वही सेम चीज सर आप ओके, हाँ। इंफिनिटी रिपोर्ट्स के थ्रू आप बना सकते हो वहां पे।
बट कोई ऐसा ओके, स्पेसिफिक ठीक है, केस हो ठीक कि जिसके लिए आप यूज कर रहे हैं हो तो नहीं आप बाकी तो बता नहीं, मुझे सकते ये हैं। सब डिटेल पूरी मंथ की देखने के लिए, दैट्स इट। रिपोर्ट में देख हाँ वो सकते तो हैं, तो रिपोर्ट से, मैंने वो देखा नहीं एक्चुअली, तो पर ठीक है। हाँ वो आप वहां से कर सकते हो। ओके, यस राजेश सर। आप म्यूट पे हो सर। राजेश सर आप म्यूट पे हो। हेलो अमित सर, મારી પાસે કેશ કેટલી પડી છે? કેશ મારી પાસે 2 લાખનું કલેક્શન આવ્યું છે, એમાંથી મારે 25,000નો એક્સપેન્સ કનેકો છે અને 1,75,000 મારી પાસે કેશ પડી છે અને બેંકમાં મેં લાખ રૂપિયા ભર્યા, તો 25,000 મને ક્યાં બતાવશે મને કેશ પડી છે? आप सर शिफ्ट क्लोजिंग બધા એ वाला જ यूज સવાલ कर કર્યો रहे છે हो? મને, हाँ, કેશ બેલેન્સ ક્યાં બતાવશે? आप सर वो शिफ्ट क्लोजिंग वाला यूज कर रहे हैं सर? हेलो हेलो हेलो। हाँ, કેશ બેલેન્સ મને ક્યાં બતાવશે લાસ્ટ? हाँ सर, आप कैश शिफ्ट क्लोजिंग यूज कर रहे हो सर अभी अपनी फार्मेसी में? શું કરે છે? अब जो कैशियर वाला सिस्टम है, जो एट एंड ऑफ द डे जो शिफ्ट क्लोज होता है, वो प्रोसेस फॉलो होता है सर आपकी फार्मेसी में? हाँ डेली होता है, डेली होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक डिपॉजिट, वो शिफ्ट का आप कैश बैंक में डिपॉजिट करते हो, या फिर आप फॉर एग्जांपल ऐसे ही 1 लाख रुपए आए तो आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, हाँ बैंक में किस तरह से डिपॉजिट भी होता है? करते हैं। हाँ, बट वो शिफ्ट वाइज होता है कि फॉर एग्जांपल आज मेरा सुबह से शाम तक मेरा शिफ्ट था, उसमें 1 लाख रुपए का सेल हुआ शिफ्ट में था। नहीं, ओनर के पास नहीं भाई, मेरी बात, ओनर के पास कैश आ जाएगी तो ओनर के पास कितना कैश पड़ा है कैसे पता चलेगा? वो तो सर शिफ्ट क्लोज के हिसाब से आप फॉर एग्जांपल तीन शिफ्ट या 2 शिफ्ट आपके पूरे दिन में चल रही है, हाँ 3 चला मैनेजर के को बाद में ओनर के रिस्पॉन्सिबल। पास पैसे आ गया हाँ, और तो ओनर में आपको वहां पे ओनर ने गेट रेट। ओनर के पास 2 लाख रुपया है, 2 लाख में से 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, तो 1 लाख रुपया कहाँ पे दिखाएगा वो? बेसिकली सर वहां पे क्या होगा कि टोटल 2 शिफ्ट है आपकी, एक शिफ्ट में 1 लाख का सेल हुआ, दूसरी शिफ्ट में दूसरा 1 लाख का सेल हुआ, टोटल 2 लाख का सेल हुआ। तो आपको वहां पे जो अपना कैश मैनेजमेंट का रिपोर्ट है, वहां पे आपको 2 शिफ्ट दिखेगी कि एक हामिद ने क्लोज की है और एक ध्रुवी ने क्लोज की है, तो 2 लाख टोटल आपको दिखेगा। और नेक्स्ट फेज में हम क्या करने वाले हैं कि अगर आप वो एक शिफ्ट का कैश आप बैंक में डिपॉजिट भी कर रहे हो, तो हम आपको वहां पे भी दिखा देंगे कि ये कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। नहीं वो नहीं दिखता, नहीं बराबर है मेरे को, आपको डेमो करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। श्योर श्योर, ऐसा होगा तो कॉल के बाद मैं किसी टीम से आपको कनेक्ट करवा दूंगा। हाँ ये मीटिंग के बाद मेरे को डेमो करके दिखाना मेरे को। ठीक है, मैं किसी से आपके सपोर्ट में से कॉल अरेंज करवा ठीक है। दूंगा। यस रेनिश सर। हाँ मेरा कंसर्न वही शिफ्ट क्लोजिंग को लेके ही है कि जो शिफ्ट क्लोजिंग हो रही है उसमें हमको बिल वाइज अमाउंट चाहिए, है ना? बिल वाइज अमाउंट? हाँ, जैसे बिल नंबर 85 टू बिल नंबर 105 कितना अमाउंट हुआ वैसा चाहिए। बट सर पर्टिकुलर उसका यूज केस क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं आपको वो शिफ्ट में जो सेल हुआ है, लाइक 85 से 105 तक सेल हुआ, 20 इनवॉइसेस हुए हैं कैश में या यूपीआई में वो शिफ्ट में, तो उससे लाइक आइडेंटिफाई क्या होगा सर? उसका बाइफर्केशन की कैश में कितना बिल पड़ा और यूपीआई में कितना बिल पड़ा, और जो हमारे गले में कैश है और जो यूपीआई रिसीविंग आई है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो तो सर अगर शिफ्ट क्लोजिंग हो रहा है तो वो डायरेक्टली आपको वहां पे रहनी सर, आपको कैश मैनेजमेंट में दिखाएगा कि ये चीज फॉर एग्जांपल कि ये मेरी शिफ्ट, ये शिफ्ट में मेरे इतने बिल्स बने थे कैश में, इतने यूपीआई में और इतने, और नेट वहां पे आपको मिल जाएगा। जो नेक्स्ट फेज में हम नेक्स्ट वीक लॉन्च कर रहे हैं, वो चीज में वहां से आपको पता चल जाएगा। जो रेनी सर हमने आपको डेमो दिखाया था वो चीज में, बट ये बिल नंबर वाला है, वो आई थिंक एक बार हमें कॉल के बाद मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि वो आई थिंक वो बिल नंबर और आइडेंटिफायर की अपने 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 को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम जीरो भी यूज करते हैं और कैश मैनेजमेंट भी वो केसेस में अगर यूज करेंगे एक सेम टाइम पे, तो सिर्फ अपने को कैश रिकंसाइल करना पड़ेगा, जीरो के थ्रू अपना यूपीआई और सीसी ऑटोमेटिक रिकंसाइल हो जाएगा। तो जो बिल नंबर वाला होगा जीरो में दिक्कत ये आ रही है, जीरो में दिक्कत आ रही है रेजर पे की मशीन की। वो यस रेंज सर,
हाँ रेजर आफ्टर वो जेरो का जो भी क्वेश्चन है, सो आई कनेक्ट यू आफ्टर दिस कॉल। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस है किसी को? हाँ हामिद भाई, मैं जानना चाह रहा था अगर स्टाफ कैशियर अगर जमा बैंक डिपॉजिट करता है, मान लो कैशियर को हमने ये राइट दिया कि आप है ना अपनी फिनिश करके शिफ्ट फिनिश करके और बैंक में जमा करा दो, तो वो कहाँ शो कर सकता है? वो सर वो चीज अभी नहीं है, सो दैट इज हम नेक्स्ट फेज में वो हम चीज करने वाले हैं। अभी वो ओके सिस्टम में है नहीं कि वो कैश बैंक में डिपॉजिट हो गया है, वो आपको दिखे। ठीक है, ये अपडेट की जरूरत रहेगी। ठीक है सर, वो लिख लिया हमने, विल ओके डेफिनेटली लुक इनटू। ओके। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल का अपना जो कॉल है वो मॉनिटरिंग चार्ट्स के ऊपर है, सो प्लीज डू ज्वाइन टुमारो। तो वहां पे भी लाइक यू विल गेट मोर इनसाइट टू रन योर बिजनेस मोर एफिशिएंटली। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।